ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PCS, PPSC, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ 45th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਜੈਂਡ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੋਕਲਿਸਟ ਪੰਡਿਤ ਜਸਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡ VP32 ਹੈ, ਐਸਟਰੋਇਡ VP32 ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਜਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਟਰੋਇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ ਔਰ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਓਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਚੇਅਰਮੈਨ SS ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਰਾਓ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਏ ਕੈਂਪੇਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਏ ਕੈਂਪੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵਾਸਥਯ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ। ਖੁੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਲਥ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਸਥਯ ਪੋਰਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ। BSF ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ VK ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ 1 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਔਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IISc ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਿਮਨ ਬਾਗਚੀ IISc ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2021 ਜੋਇਲ ਹਿੰਡਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਜੋਇਲ ਹਿੰਡਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ।
हालांकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 2021 जॉयल हिंडल ब्रांड अवार्ड किसने जीत्या, बीमन बागची ने। दूसरा क्वेश्चन कि यह कितने प्रोफैसर ने, हालांकि काफ़ी घट चांसिस ने पर हो सकता इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जाए। IISc दे विच बेंगलोर दे विच प्रोफैसर ने, प्लस जॉयल हिंडल ब्रांड कित्थों बिलोंग करते सी, USA तो बिलोंग करते सी, USA का यह अवार्ड। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने निर्माण श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया। निर्माण श्री प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया गया, यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया। किस दे लई, वूमेन स्किल्स नू एनहेंस करन दे लई कंस्ट्रक्शन सैक्टर दे विच, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सैक्टर दे विच वूमेन स्किल नू एनहेंस करन दे लई इसनू लॉन्च किया गया। इस दे अंडर बेसिकली 1 मिलियन यूरोज प्रोवाइड किए जाएंगे और यह अपने तरीके का पहला प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया महाराष्ट्र और उड़ीसा दे विच। हजे स्टार्टिंग दे लई महाराष्ट्र और उड़ीसा के 4 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इसनू लॉन्च किया गया, जिस दे अंडर तकरीबन 3000 वूमेन्स नू ट्रेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इस इनीशिएटिव नू लॉन्च किया गया, जिस दे अंडर 140 कंट्रीज़ नू कनैक्ट किया जाएगा। किस दे लई, ताकि एक कॉमन ग्रिड बनाई जा सके सोलर पावर नू ट्रांसफर करन दे लई, सोलर पावर नू ट्रांसफर करन दे लई एक कॉमन ग्रिड बनाई जा सके। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनीशिएटिव लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इस इनीशिएटिव नू ड्राफ्ट किया गया, प्रॉपर जी इनीशिएटिव है इसनू प्रॉपर तरीके नाल जिहड़ा ड्राफ्ट किया गया न्यू एंड रीनेबल एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा। न्यू एंड रीनेबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने, आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने की करिया, गवालियर चंबल एक्सप्रैस वे का नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के उत्ते रखा गया। प्लस सिमिलर तरीके दे नाल बुंदेलखंड एक्सप्रैस वे जिहड़ा UP दे विच है इसनू भी अटल पास का नाम दिता गया। प्लस तीसरी चीज़ अटल टनल है जिहड़ी वो हिमाचल प्रदेश दे विच है। हिमाचल प्रदेश दे विच अटल टनल बनाई जा रही है। इसनू जिहड़ा कंप्लीट अनाउंस किया गया है कि सितंबर 2020 तक इसनू कंप्लीट करके इनोग्रेट किया जाएगा। क्यों किया गया तीनों चीज़ां, ये बेसिकली डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ऑब्जर्व किया जाता है। कदों ऑब्जर्व किया जाता है, 25 दिसंबर ਨੂੰ। ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 16 अगस्त ਨੂੰ ऑब्जर्व की गई, याद रखना। नेक्स्ट है यूके द्वारा 3 मिलियन पाउंड प्रोवाइड किए गए हैं इनोवेशन चैलेंज फंड के लिए। इनोवेशन चैलेंज फंड के लिए 3 मिलियन पाउंड प्रोवाइड किए गए हैं यूके द्वारा, ताकि कोविड-19 नू टैकल किया जा सके, प्लस क्लाइमेट चेंज नू भी टैकल किया जा सके। इस फंड के अंडर AI डाटा क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है कर्नाटका दे विच, और फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र दे विच। ठीक है जी, टू टैकल कोविड-19 एंड टू प्रमोट अ ग्रीनर प्लैनेट। क्लाइमेट चेंज और ग्रीनर प्लैनेट यानी इको चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ताकि ग्रीनर प्लैनेट बनाया जा सके। नेक्स्ट है टू एनश्योर ईजी डिजिटल पेमेंट्स इन रूरल एरियाज़ दे विच डिजिटल पेमेंट्स नू ईजी करने के लिए आंध्र प्रदेश ने UPI बेस्ड पेमेंट शुरू की ने विलेजिस दे विच। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी द्वारा। इस दे लई आंध्र प्रदेश द्वारा NPCI के नाल पार्टनरशिप की गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस कैनेरा बैंक के नाल पार्टनरशिप की गई है, ताकि 15,000 विलेज इस दे अंडर डिजिटल पेमेंट के लिए एम्पावर किए जा सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने DV सर्बानंद गौड़ा कर्नाटका बेंगलुरु तो ही लोक सभा MP ने, और इन्होंने अनाउंस किया है कर्नाटका दे विच एक प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट लगाने का। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट लगाई जाएगी कर्नाटका बेंगलुरु दे विच। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन के वाल। स्टैटिक पोर्शन के आप स्टेडियम्स डिस्कस कर रहे थे, आप इंडिया के स्टेडियम्स काफ़ी डिस्कस किए हैं। हुण आप डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल लैवल के इंपोर्टेंट स्टेडियम्स। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम USA के विच है, टैनिस के रिलेटेड है। इस तो इलावा एट्री डोनेस्टर और प्रोम का नाम तुसीं सुनिया होगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। प्रोम स्टेडियम इंग्लैंड के विच है हॉर्स राइडिंग के लिए।
ਹੈਡਿੰਗਲੇ ਸਕੁਐਨਚੈਸਟਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਬਲੈਕ ਹੈਲਥ ਰਗਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਟੁਕੈਰਮ ਰਗਬੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2 ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡੇ ਪਲੱਸ ਯੂਥ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸਦੀ ਥੀਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਥ ਡੇ ਦੀ, ਤਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 13 ਅਗਸਤ ਔਰ 16 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀਕ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? CII ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हैल्थ इंडस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री, हैल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री, इन्होंने तीनों द्वारा मिलकर इस वीक में ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इसकी थीम है रीडिफाइनिंग हैल्थ केयर ईकोसिस्टम। रीडिफाइनिंग हैल्थ केयर ईकोसिस्टम। ठीक है जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हू इज़ अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर की गल करते हैं। मेघालय के गवर्नर होंगे सी तथागत रॉय। इन्हों रिप्लेस किया गया, इन्हों रिप्लेस करके सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के गवर्नर थे। ठीक है, ध्यान नाल सुनना। इंटरस्टिंग न्यूज़ है कि जोड़े गोवा के गवर्नर सी सत्यपाल मलिक, सब तो पहले जोड़े सत्यपाल मलिक सी ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सी। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो डिवाइड करके यूटी बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज़ बना दिता गया। तो लद्दाख के RK माथुर बना दिते गए और जम्मू एंड कश्मीर के GC मुर्मू बना दिते गए। ठीक है जी। और जोड़े सत्यपाल मलिक सी इन्हों बना दिता गया गोवा का। हुण गोवा के सत्यपाल मलिक नूं रिप्लेस करके मेघालय के गवर्नर बना दिता गया। कित्थे दे गवर्नर बना दिता गया? मेघालय के। ठीक है जी। हुण की होया, अगर इन्हों मेघालय का बना दिता तो गोवा खाली हो गया। तो गोवा दे विच जिहड़े भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर ने, इन्हों गोवा का एडिशनल चार्ज दे दिता गया। गोवा का एडिशनल चार्ज किन्हां दिता गया? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी नूं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन ने? कोनार्ड संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने। सिमिलर तरीके दे नाल यूपी और MP की गल है कि MP के गवर्नर लालजी टंडन होंदे सी, इन्हों रिप्लेस करके यूपी के गवर्नर लालजी टंडन की डैथ तो बाद यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल नूं एडिशनल चार्ज दिता गया MP का। ये याद रखना। हुण गल करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की हुणे आपां डिस्कस करके हटे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर पहले कौन अपॉइंट किए गए? GC मुर्मू अपॉइंट किए गए। प्लस हुण GC मुर्मू ने रिजाइन किया है, तो GC मुर्मू की जगह जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं मनोज सिन्हा। और GC मुर्मू को अपॉइंट कर दिता गया कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है जी। यानी कि हुण अपने की याद रखना है कि भगत सिंह कोश्यारी गोवा और महाराष्ट्र के गवर्नर ने। ठीक है, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, GC मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ां याद रखनी है। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स स्पैक्टेकल्स कंपनी ओकले। ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हां नूं अपॉइंट किया गया? ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए ने
रोहित शर्मा नूं ओकले कंपनी का ब्रांड अंबैसडर अपॉइंट किया गया। रोहित शर्मा नूं इस तो इलावा ला लीगा का ब्रांड अंबैसडर भी अपॉइंट किया जा चुका है। इन्हां नूं एडिडास के ब्रांड अंबैसडर भी अपॉइंट किया जा चुका है। इन्हां नूं क्रिकइंडम का भी ब्रांड दुबई बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिकइंडम का भी ब्रांड अंबैसडर अपॉइंट किया जा चुका है। ठीक है जी। इस तो इलावा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना रिसेंटली इन्होंने दोनों की रिटायरमेंट अनाउंस की है, ये याद रखना है। प्लस अगर आप गल करिए महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी नूं पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड अंबैसडर अपॉइंट किया गया सी। हरभजन सिंह नूं ई बाइक गो का ब्रांड अंबैसडर अपॉइंट किया गया सी। हरभजन सिंह बेसिकली बॉलर ने और इन्हों अपॉइंट किया गया सी ई बाइक गो का ब्रांड अंबैसडर। ऋषभ पंत भी क्रिकेटर ने और इन्हों अपॉइंट किया गया सी JSW स्टील का ब्रांड अंबैसडर। JSW स्टील का ब्रांड अंबैसडर अपॉइंट किया गया सी ऋषभ पंत नूं। प्लस एक चीज़ होर सी कि JSW सीमेंट के ब्रांड अंबैसडर कौन अपॉइंट किए गए सी? सौरभ गांगुली, फॉर्मर क्रिकेटर सौरभ गांगुली, प्लस सुनील चेत्री फुटबॉलर, क्रिकेटर और फुटबॉलर JSW सीमेंट के ब्रांड अंबैसडर अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक नूं किसने लिखा है? इस बुक नूं लिखा गया चेतन भगत द्वारा इस बुक नूं लिखा गया वन अरेंज्ड मर्डर। इस तो इलावा अगर आप बाकी ऑप्शनस की गल करिए तो RC भार्गव द्वारा गेटिंग कंपीटिटिवनेस बुक लिखी गई सी और RC भार्गव मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने। उर्जित पटेल फॉर्मर RBI गवर्नर ने और इन्होंने जी बुक लिखी सी उस बुक का नाम सी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी सी उर्जित पटेल ने। यतीश यादव द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशंस रॉ द्वारा लिखी गई सी बुक यतीश यादव द्वारा बुक लिखी गई सी रॉ के उत्ते। रॉ की गल करिए रॉ के हैड का नाम याद रखना है सामंत गोयल। निरुपमा यादव द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सी विशेष कोड टू विन। बेसिकली इस बुक नूं इंडिया के सब तो यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष भृगवंशी की लाइफ स्टोरी के उत्ते निरुपमा यादव द्वारा इस बुक नूं लिखा गया सी। बुक का नाम रखा गया विशेष कोड टू विन। ठीक है जी, सारी बुक्स याद रखनी ने। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड 1 बिलियन लोन टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली तो मेरठ कह सकते हैं, अगर आप मेरठ किया जाता है तो दिल्ली तो मेरठ तक एक रीजनल ट्रांसपोर्ट हाई सिस्टम एक रीजनल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। 1 बिलियन का लोन दिता गया, 1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया किहड़े बैंक द्वारा? ADB द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा इस लोन नूं प्रोवाइड किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ दे विच सीगा। ADB बैंक क्यों न्यूज़ दे विच सीगा वो भी डिस्कस करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हैडकुआटर मनीला फिलीपीनस दे विच है। मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच हैडकुआटर है। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए मसत्सुगु आसाकावा जैपनीज़ ने और इसके हैड ने ADB के हैड कौन ने? ADB के प्रेजिडेंट मसत्सुगु आसाकावा। प्लस ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪॉइंट ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ADB ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ इन्होंने एज ए इलैक्शन कमिश्नर रिजाइन किया और वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए ने ADB के। बाकी ऑप्शनस के NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया, यानी कि 5 मैंबर ने इसका हैडकुआटर शंघाई चाइना के है। प्लस इसके जोड़े हैड ने मार्कोस त्रियोजो
जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। AIIB की गल करिए, AIIB ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਮੈਂਬਰ रिसेंटली अपॉइंट होए, 101 ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਨੇ रिसेंटली AIIB ਦੇ ਵਿੱਚ। और AIIB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੀजिंग ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। प्लस ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਮ ਲਿਕੁਇਨ। वर्ल्ड बैंक की गल करिए 189 मैंबर कंट्रीज़ ने, IMF ਦੇ ਵਿੱਚ भी 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। दोनों का हैडकुआटर वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ है। IMF हैडकुआटर और वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक के हैड ने, वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास। और हमेशा याद रखना वर्ल्ड बैंक के हैड हमेशा कितों बिलोंग करते हैं, अमेरिका तो बिलोंग करते हैं, USA तो बिलोंग करते हैं। IMF के हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF के हैड ने। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ वॉन IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स विद अ बिड ऑफ 222 करोड़ रुपीज़। सुन याद होएगा आप डिस्कस किया सी IPL के रिलेटेड, इंडियन प्रीमियर लीग। IPL है जिहड़ा इस साल कोविड-19 के कारण इंडिया होस्ट नहीं कर सकता, तो इंडिया ने की किया UAE के नाल पार्टनरशिप की। BCCI बेसिकली UAE ने कहा कि तुसी चाहो तो इंडिया जिहड़ा IPL है साडे देश दे विच आके होस्ट कर सकते हो, तो इसलिए इंडिया UAE दे विच IPL होस्ट कर रहे। किनवें नंबर का 13th नंबर का IPL है, याद रखना है, ठीक है। हुण की होया कि इसके जोड़े स्पॉन्सरशिप के लिए टाइटल सीगा, स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल इसनूं वीवो स्पॉन्सर करती है। वीवो का बेसिकली 5 साल का एग्रीमेंट किया होया UAE दे नाल, सॉरी IPL दे नाल। तां इस साल के लिए थोड़ा इंडिया और चाइना के रिलेशनस के करके इस साल IPL नूं वीवो होस्ट नहीं करेगा। हालांकि बाद के जोड़े IPL होंगे उन्होंने वीवो ही होस्ट करेगा, इस साल होस्ट नहीं करेगा। इस साल के लिए स्पॉन्सरशिप टाइटल के लिए बिडिंग की गई, तो बिड नूं किसने जीता है, ड्रीम 11 एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने इस साल की बिड जीती है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ड्रीम 11 स्पॉन्सर करेगा IPL नूं इस साल, ठीक है जी, ये याद रखना है। प्लस अगर आप गल करिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बैंक है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने इसदे ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप पार्टनर बनया है, ये भी याद रखना है, ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। रैंकिंग रिलीज़ की गई है टॉप इनोवेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, या फिर उसमें पर दूसरे नाम के नाल जाना जा सकता है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इस रैंकिंग नूं रिलीज़ किया गया वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इस रैंकिंग नूं रिलीज़ किया गया। इस रैंकिंग दे विच किहड़ी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, इसनूं टॉप किया है IIT मद्रास ने। किसने टॉप किया इसनूं, IIT मद्रास द्वारा इसनूं टॉप किया गया लगातार दूसरे साल, ठीक है जी, लगातार दूसरे साल, सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर। अगर आप गल करिए लास्ट ईयर भी इस रैंकिंग नूं IIT मद्रास द्वारा ही टॉप किया गया सी। अच्छा, IIT मद्रास द्वारा रिसेंटली उड़ीसा के नाल भी एग्रीमेंट साइन किया गया सी, किस दे लई, इरुवेडी डॉल्फिन्स जो कि चिल्का लेक उड़ीसा दे विच पाई जांदियां ने, इन्हां दे नंबर नूं ट्रिपल करन दे लई, 3 गुना करन दे लई एग्रीमेंट साइन किया गया सी IIT मद्रास ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए IIT गांधीनगर की प्रोजेक्ट ISAC लॉन्च किया गया सी IIT गांधीनगर द्वारा। प्लस चैस्ट एक्सरे तो कोविड-19 नूं डिटेक्ट करने के लिए मैथड्स डेवलप किए गए सी IIT गांधीनगर द्वारा। IIT कानपुर द्वारा अगर आप गल करिए शुद्ध नाम का डिवाइस IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है। प्लस मोबाइल मास्टर जी सोल्यूशंस भी डेवलप किए गए हैं IIT कानपुर द्वारा, ठीक है जी। इस तो इलावा IIT पटना और IIM बेंगलुरु, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने। सब तो पहले IIT पटना, फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। IIT पटना के नाल फ्लिपकार्ट ने एग्रीमेंट साइन किया है टू हैल्प स्टूडेंट्स गेट रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर। इसका की मतलब है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स नूं, जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने किस समझाया जा सके कि किस तरीके नाल एक इंडस्ट्री वर्क करती है, तो फ्लिपकार्ट ने इस एग्रीमेंट नूं साइन किया है। इस दे नाल इन्हां नूं रियल वर्ल्ड जिहड़ा इंडस्ट्री का काम है उसनूं समझाया जा सकेगा। IIM बेंगलोर ने की किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने IIM बेंगलोर के नाल पार्टनरशिप की टू लॉन्च डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म।
डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया IIM बेंगलोर के नाल मिलके नैशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट है रेलवेज। रेलवेज हैव इंट्रोड्यूस्ड निंजा। निंजा नाम का एक ड्रोन यूज़ किया रेलवेज द्वारा शुरू किया जा रहा है किस दे लई सर्विलेंस करने के लिए सिक्योरिटी दी किस दे कित्थे रेलवे स्टेशन के उत्ते रेलवे ट्रैक्स के उत्ते और रेलवे वर्कशॉप्स के उत्ते। निंजा नाम का क्वेश्चन दूसरे तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि रेलवेज द्वारा किहड़ा ड्रोन रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया गया तो अपना आंसर होएगा निंजा। या फिर निंजा नाम का प्लेटफॉर्म किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया रेलवेज द्वारा किहड़े डिपार्टमेंट द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया। अपना क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन ने। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने VK यादव। ठीक है जी अपना आंसर होएगा VK यादव। फर्स्ट ऑप्शन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अपने VK यादव। इस तो इलावा एक होर न्यूज़ इत्थे ही डिस्कस करते हैं सेबी की। सेबी के जिहड़े चेयरमैन ने कौन ने अजय त्यागी। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन ने रिसेंटली इन्होंने 18 महीने की एक्सटेंशन दी गई है यानी कि 1.5 साल की एक्सटेंशन दी गई है। सेबी का हैडकुआटर मुंबई के 1992 के आई थिंक इसनूं बनाया गया सी और न्यूज़ की सी कि सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं GP गर्ग। सेबी के चेयरमैन ने अजय त्यागी और सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस दे सिक्योरिटी डायरैक्टर अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं GP गर्ग। PC मोदी CBDT के चेयरमैन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के चेयरमैन PC मोदी और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन ने अजीत कुमार। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहला वर्ल्ड का सोलर टेक्नोलॉजी समिट इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा हैल्ड किया जाएगा 8 सितंबर को। डेट अनाउंस कर दी गई है कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हैल्ड किया जाएगा। ठीक है अपना क्वेश्चन है कि हैडकुआटर कित्थे है ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हैडकुआटर कित्थे है। इंडिया के हैडकुआटर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के गुरुग्राम हरियाणा के हैडकुआटर है ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 2018 के इसकी पहली असैंबली मीटिंग हैल्ड की गई सी याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस के मॉन्ट्रियल कैनेडा के वाडा का हैडकुआटर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अगर आप गल करिए स्पोर्ट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिथे भी डोपिंग टैसट के रिलेटेड गल आती है तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काफ़ी काफ़ी कह सकते हैं कंट्रीज़ या काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर काफ़ी परसनस नूं बैन कर चुकी है डोपिंग के कारण। मॉन्ट्रियल कैनेडा अगर आप गल करिए रिसेंटली वाडा द्वारा रशिया नूं बैन किया गया सी। कंट्री की गल करिए रशिया नूं बैन किया गया। रशिया टोक्यो ओलंपिक्स के पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा प्लस एशियन गेम्स के भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। रोम इटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर कित्थे है रोम के जिथे भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कित्थे हैडकुआटर रोम इटली के। न्यूयॉर्क USA के यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए यूनीसेफ का हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क USA के ही है। ठीक है जी पेरिस फ्रांस के यूनेस्को का हैडकुआटर है। सब तो इंपॉर्टेंट यूनेस्को का हैडकुआटर कित्थे है पेरिस फ्रांस के। नेक्स्ट है चाइनीज़ सेंट्रल बैंक। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिसनों पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के नाम तो जाना जाता है। इसने स्टेक बाय किया है। इसने किहड़े बैंक के रिसेंटली स्टेक एक्वायर किया है। अपना आंसर है ICICI बैंक। इस रिलेटेड थोड़ी कन्फ्यूजन होएगी सूँ आप थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि चाइना का जोड़ा बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिमें अपना इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिमिलर तरीके पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इन्होंने कुछ टाइम पहले HDFC बैंक के स्टेक बाय किया। ठीक है उस टाइम इंडिया ने फिर उसके सैंक्शनस लगाइया FDI पॉलिसी नूं चेंज किया और हुण इसने की किया अनाउंस किया ICICI बैंक के भी स्टेक बाय किया।
ठीक है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा ICICI बैंक दे विच स्टेक बाय किया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एक न्यूज़ होर है उसनों भी डिस्कस करते हैं। उस तो इलावा यस बैंक की गल करिए, इसने डिश TV दे विच स्टेक बाय किया सी। LIC ने यस बैंक दे विच स्टेक बाय किया। ईवन कि SBI द्वारा भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी यस बैंक दे विच स्टेक बाय किया जा चुका है। SBI रिलेटेड एक न्यूज़ है कि SBI ने अनाउंस किया है कि जिहड़े SMS चार्जिस होंदे सी, SMS चार्जिस होंदे सी उन्होंने ये बंद कर देने। SBI द्वारा रिसेंटली पहले अनाउंस किया गया कि पेनल्टी वेवर, अगर आप सुनिया होगा कि हर एक बैंक के एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने अकाउंट के जमा करवानी जरूरी है। अगर आप उस अमाउंट तो घट अमाउंट या फिर अगर आप कहने भी अगर अपने अमाउंट है कि इन्नी अमाउंट 1000 रुपये जरूरी है तो आप की कहते हैं उस 5000 रुपया सीगा अपने अकाउंट के आपने 4500 कढ़ लिया तो अपने अमाउंट कितनी रहेगी 500 रहेगी तो आपको पेनल्टी लगती होंगी सी, ठीक है। तो SBI ने सब तो पहले इस पेनल्टी को बंद किया और उस तो बाद हुण SMS चार्जिस भी बंद कर दिते हैं, ठीक है जी। किहड़े बैंक ने रिसेंटली SMS चार्जिस बंद किए ने? SBI द्वारा बंद किए गए हैं। रजनीश कुमार इज ए चेयरमैन ने या रखने। एग्जिम बैंक रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं सी। एग्जिम बैंक ने रिसेंटली जिन्ना कंट्रीज़ करके न्यूज़ के विच रहा सी उन्होंने बारे डिस्कस कर लें। एग्जिम बैंक ने इन्ह 3 कंट्रीज़ को रिसेंटली लोन प्रोवाइड किया है। सब तो पहले मलावी नूं 215.68 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट्स के लिए। निकारागुआ नूं 20.10 मिलियन प्रोवाइड किया गया सी हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए। मोजाम्बिक नूं 250 मिलियन प्रोवाइड किया गया पावर सप्लाई क्वालिटी नूं इंप्रूव करने के लिए, ठीक है जी। हुण कमेंट बॉक्स में तुसीं की दसना है इन्हां 3 कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी, मलावी, निकारागुआ और मोजाम्बिक, तीनों की कैपिटल और करंसी दसनी है। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ इंडिया UAE जॉइंट कमीशन मीटिंग। इंडिया और UAE की जॉइंट कमीशन मीटिंग की किनवा एडिशन हैल्ड किया गया है वर्चुअली। रिसेंटली इंडिया और UAE का जॉइंट कमीशन मीटिंग, इंडिया और UAE की जॉइंट कमीशन की मीटिंग हैल्ड की गई है किस दे उत्ते? ट्रेड इकनॉमिक और टैक्नीकल कॉरपोरेशन के उत्ते। ट्रेड इकनॉमिक एंड टैक्नीकल कॉरपोरेशन के उत्ते इस मीटिंग को हैल्ड किया गया है। किनवी मीटिंग हैल्ड की गई है? ये मीटिंग हैल्ड की गई है 13वीं मीटिंग हैल्ड की गई है। इंडिया वालों अगर आप गल करिए निर्मला सीतारमन इंडिया के फाइनैंस और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर इन्हों वालों पार्टिसिपेट किया गया सी इस मीटिंग के विच, ठीक है जी। और इस दे नाल ही अनाउंस किया गया कि 14वीं मीटिंग जी 14th मीटिंग है उसनों हैल्ड किया जाएगा आबू धाबी दे विच। आबू धाबी UAE दे विच हैल्ड किया जाएगा 2021 दे विच। 14th मीटिंग आबू धाबी हैल्ड करेगा 2021 दे विच, ठीक है जी। UAE बारे हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं कि IPL होस्ट कर रहा है UAE। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम केड़ी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? केड़ी स्टेट द्वारा कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? वेस्ट बंगाल द्वारा। वेस्ट बंगाल द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा अनाउंस किया गया है कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। प्लस अगर आप गल करिए वेस्ट बंगाल की स्कीम्स प्रोचेस्टा, बंगाश्री, छा सुंदरी, मातृपुष्टि, रिसेंटली कर्मो भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया सी वेस्ट बंगाल गौरमेंट द्वारा। वेस्ट बंगाल के कोलकाता की अगर आप गल करिए ईडन गार्डन के विच इंडिया और बांग्लादेश का डे नाइट टेस्ट मैच हैल्ड किया गया सी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए कोलकाता के विच हुगली रिवर के उत्ते कोलकाता बनया हुआ है और हुगली रिवर के उत्ते अंडर वाटर मैट्रो प्रोजैक्ट लगाया जा रहा है। हरियाणा की गल करिए हरियाणा रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं। अटल मजदूर कैंटीन हरियाणा द्वारा लॉन्च की गई सी। हरियाणा के विच ही 4th एडिशन हैल्ड किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पंचकुला हरियाणा के विच। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना नूं हरियाणा के विच ही लॉन्च किया गया सी। हरियाणा द्वारा 75% प्राइवेट जॉब्स नूं रिजर्वड किया गया सी लोकल्स दे लई। यूपी की गल करिए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन्हों द्वारा प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। काओ स्लोटर एक्ट अमेंड किया गया। इस तो इलावा यूपी की गल करिए यूपी की प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन काओ स्लोटर एक्ट टीम 11 शुरू की गई सी
ਹਰਬਲ ਰੋਡਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ यूपी ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। झारखंड ने रिसेंटली अपना नवा लोगो लॉन्च किया है झारखंड है, जिसके वाइट एलीफेंट है, फ्लावर है, पलाश और डांस मोटिफ है। कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लें। हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने की करा अनाउंस किया है कि जो एक नवा बस स्टैंड बनाया जा रहा है करनाल दे विच, हरियाणा के करनाल दे विच नवा बस स्टैंड बनाया जा रहा है, उसनू डेडिकेट किया जाएगा माटियर मदन लाल ढींगरा नू, यानी कि मदन लाल ढींगरा के नाम के उत्ते उसका नाम रखा जाएगा। सिमिलर तरीके दे नाल यूपी ने भी अनाउंस किया है कि होम मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूवल दी गई है जिहड़ा मंदूदी रेलवे स्टेशन है यूपी दे विच, मांदू आदि रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज करके बनारस रखा जाएगा, इसका नाम चेंज करके बनारस रखा जाएगा। कुछ होर न्यूज़ सीगियां, इन्होंने MCQ दे विच बनाने के लिए थोड़ा टाइम घट सीगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2020 है, इसनू इंडिया होस्ट करन जा रहा है, इसनू पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। 2020 बेसिकली नवंबर दिसंबर के हैल्ड की जानी सी, पोस्टपोन करके 2021 के हैल्ड किया जाएगा। सिमिलर नेवल्स कमांडर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली सूँ याद होगा आप डिस्कस की सी एयर फोर्स की कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसनू भी न्यू दिल्ली के हैल्ड किया गया सी, और नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस भी न्यू दिल्ली के शुरू की गई है, कल शुरू की गई है नेवल्स कमांडर कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, ये याद रखनी है। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल, जिथे भी तुसीं शेयर कर सकते हो, WhatsApp, Telegram, Facebook, जिथे भी शेयर कर सकते हो। सैशन नूं प्लीज़ शेयर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।